بلال صاحب از قلم شکیل احمد چوہان۔ بلال اپنی نانی جہاں آرا کے کمرے میں داخل ہوا جو کہ اکیلی بیٹھی ہوئی تھیں۔ بلال نے نانی کو سلام کیا اور ان کی خیریت دریافت کی۔ آج کوئی نہیں ہے آپ کے پاس؟ بلال نے پوچھا۔ جمال تو آج دوپہر کو امریکہ چلا گیا، تمہاری مامی اور شعیب کا کوئی پتہ نہیں، اور نوشی توشی تو آج دوپہر سے ہی جدھر تمہارا اسکول ہے، جوہر ٹاؤن۔ بلال نے بات آگے بڑھائی۔ ہاں، جوہر ٹاؤن میں کوئی ان کے کپڑوں کی نمائش ہے، وہ بڑا سا ہال، کیا نام ہے اس کا؟ ایکسپو سینٹر، بلال نے بتایا۔ ہاں ہاں وہی ایکسپو سینٹر، ادھر ہیں، صبح سے گئی ہوئی ہیں، رات 10 بجے تک آئیں گی۔ بلال بیٹا کیا ٹائم ہوا ہے؟ جی 9 بجنے والے ہیں۔ بلال بولا، جوان بچیاں ہیں، ماں کو کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ نانی خفگی سے بولی، آپ نے کھانا کھایا؟ بلال نے پوچھا۔ ہاں بیٹا، غفورہ ابھی گئی ہے کھانا کھلا کر، بتا رہی تھی کہ تیرا اسکول بڑی ترقی پر جا رہا ہے، اب تو یہاں ڈیفینس کے بچے بھی تیرے اسکول میں جاتے ہیں۔ نانی نے اس کے گالوں پر پیار کیا جو کہ نیچے کارپٹ پر کشن رکھ کے پیروں کی مالش کر رہا تھا۔ بیٹا تجھے دیکھتی ہوں تو بڑا دکھ ہوتا ہے، کتنی مصیبتیں دیکھی ہیں تو نے اس چھوٹی سی عمر میں۔ 8 ماہ کا تھا تو تیرا باپ گزر گیا، اور 8 سال کا ہوا تو تیری ماں چلی گئی تجھے چھوڑ کر۔ اتنے بڑے غم چھوٹی سی عمر میں۔ نانی اضطراب سے بولی، نانو آپ کو پتہ ہے جب حضور کی عمر 6 سال تھی تو آپ اپنی والدہ محترمہ حضرت آمنہ اور ایک خادمہ ام ایمن کے ساتھ مکہ سے مدینہ آئے اپنے والد حضرت عبداللہ کی قبر کی زیارت کے لیے، اور 1 ماہ مدینہ میں قیام کے بعد واپسی مکہ کی طرف سفر کرتے ہوئے ابوا کے مقام پر آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ آج بھی ابوا کی وادی میں جائیں تو خوف آتا ہے، سیاہ خشک پہاڑ، دور دور تک آبادی کا نام و نشان نہیں، کوئی باقاعدہ رستہ نہیں ہے۔ بلال یہ باتیں بیان کرتے ہوئے ایسے کھو گیا جیسے ابوا کی وادی کو دیکھ رہا ہو، اور نانی بلال کو دیکھ رہی تھی۔ انتقال کے وقت حضرت آمنہ کے آخری الفاظ تھے، بیٹا ہر جوانی نے ڈھلنا ہے اور ہر زندہ نے مرنا ہے۔ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، اور نانو جب آپ آخری حج کے لیے مدینہ سے مکہ تشریف لے گئے تو آپ نے اسی رستے کا انتخاب کیا، ابوا کے مقام پر اپنی والدہ حضرت آمنہ کی قبر کی زیارت کی۔ میں اور آپ، حضور کی ساری امت کے غم ایک طرف اور حضور کے غم ایک طرف، کیا کوئی مقابلہ ہے ان میں؟ کوئی نہیں۔ حضور بھی بڑے اور ان کے غم بھی بڑے، ہم بھی چھوٹے اور ہمارے غم بھی چھوٹے۔ نانی نے اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان بلال کا چہرہ لیا اور ماتھا چوم لیا تھا۔ کبھی تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے تو میرا نانا ہے اور میں تیری دوتری نواسی ہوں۔ جب تو ایسی باتیں کرتا ہے تو بہشتی تیرا نانا یاد آ جاتا ہے، وہ بھی بڑا سیانہ بندہ تھا، پر ہے پنچایت والا۔ پورے ضلع ناروال میں اس کی دھوم تھی۔ کوٹ فتح گڑھ میں بہت بڑا ڈیرا تھا بہشتی کا، پر تیرے ماموں نے بیڑا غرق کر دیا، ڈیرا زمین سب کچھ بیچ دیا۔ مشہور تھا چودھری ارشاد رندھاوا کا ڈیرا، دور دور سے لوگ فیصلہ کروانے آتے تیرے نانے سے۔ بلال یہ ساری باتیں پہلے سے جانتا تھا، مگر پھر بھی نانی کے احترام میں سن رہا تھا۔ تیری مامی لگا لگایا بوٹا پٹ لے آئی، لاہور میں فیکٹری لگاتے ہیں، زمین بیچ دو۔ اگر تیرا نانا زندہ ہوتا تو ایسا تھوڑی ہونے دیتا۔ میں نے اور تیری ماں نے بہت سمجھایا، مگر تیرا ماما شروع ہی سے لائی لگ تھا۔ ہاں تیری ماں سیانی تھی، جبھی تو تیرے باپ جیسے ہیرے سے شادی کی۔ میں نے تو بڑی مخالفت کی تھی کہ ہم جٹ اور لڑکا ملک ہے، پر تیرا نانا آڑے آ گیا، اپنی مرضی کی۔ اس کا فیصلہ ٹھیک تھا۔ تیرے مامے کا رشتہ میں نے کیا تھا، بڑا شوق تھا مجھے جمال کے لیے شہری ووٹی بہو لانے کا۔ چودھری صاحب نے بڑا سمجھایا کہ جہاں آرا کڑی بڑی تیز ہے اور منڈا تیرا لائی لگ، مگر میں نے ایک نہیں سنی۔ نانی نے پرانی باتوں کا پنڈورا باکس کھول لیا تھا۔ بلال نے بات بدلی، آپ کو لطیفہ سناتا ہوں۔ پاگل خانے میں 2 پاگل تھے، دونوں کی بڑی دوستی تھی، مگر دونوں رضیا رضیا کہہ کر روتے رہتے ہر وقت۔ کسی نے ڈاکٹر سے پوچھا، یہ دونوں رضیا کو یاد کر کے کیوں روتے ہیں؟ ڈاکٹر نے بتایا، پہلا جو ہے اس کی رضیا سے شادی نہیں ہوئی، وہ اس کی یاد میں روتا ہے۔ دوسرا جو ہے اس کی اسی رضیا سے شادی ہو گئی، وہ اسے یاد کر کے روتا ہے۔ دادی ہنس پڑی۔ بلال نے انہیں کرسی سے اٹھایا اور بیڈ پر لیٹا دیا، کمبل ان کے اوپر ڈال دیا۔ اب آپ سو جاؤ، صبح انشاءاللہ بات ہوگی۔ میں نے کہا تھا کہ وہ نہیں آئے گا، مگر تم تو بس بلال بلال کی رٹ۔ ہماری زندگی کا اتنا بڑا دن تھا آج۔ نوشی نے ریڈ کلر کی ہونڈا سیوک کی پچھلی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ڈی جے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اور توشی آگے بیٹھی ہوئی تھی۔ گاڑی کلمہ چوک سے ڈیفینس کی طرف جا رہی تھی۔ 10 بجے رات کو سردی کی وجہ سے ٹریفک قدرے کم تھا، اور توشی آج واقعی غصے میں تھی۔ شادی کر لو اس سے۔ بھائی نہیں کرنی اس سے شادی، جو شخص آپ کی خوشی میں شریک نہیں ہو سکتا۔ مائی فٹ
कितना पॉजिटिव रिस्पांस मिला हमको। अब देखना तुम, मैं सबको बीट कर जाऊंगी। नौशी एक दफा फिर भड़की। गेट पर हॉर्न की आवाज से सिक्योरिटी गार्ड ने झटपट गेट खोल दिया। ये रिमोट कंट्रोल गेट था। पोर्च में गाड़ी पार्क हुई। नौशी पांव पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। जाते हुए उसने बिलाल के कमरे की तरफ नजर उठाई। बिलाल टेरेस पर खड़ा, हाथ में कॉफी का मग लिए, उनको देख रहा था। तोशी देर से गाड़ी से उतरी। वो सारे रास्ते गुमसुम थी। अब भी वो कदर थकी हुई लग रही थी। उसने गाड़ी के विंड स्क्रीन से बिलाल को खड़ा हुआ देख लिया था, मगर फिर भी वो बगैर देखे चली गई। बिलाल ने भी उसे इस वक्त बुलाना बेहतर नहीं समझा। हाँ, अलबत्ता डीजे को जाते हुए आवाज दी। आज 4 साल में पहली बार नौशी आपी को आपके ना आने पर गुस्सा आ रहा था। सारी कंपोजिशन ही बदल गई है। नौशी के मुतालिक डीजे खड़ा हुआ बिलाल को तफसील बता रहा था। कॉफी बनाऊं तुम्हारे लिए? बिलाल ने पूछा। कहानी में ये ट्विस्ट डीजे को कंफ्यूज कर रहा था। डीजे ने हाथ अपनी थोड़ी पर रखते हुए तबसरा किया। कॉफी नहीं, अभी तो खाना भी नहीं खाया। ये तो कहानी का सारा मूड ही बदल गया है। उसने खुद को मुखातिब किया, जैसे किसी गहरी सोच में हो। जाओ तुम जाकर खाना खाओ। बिलाल ने डीजे को कहा। प्याज गोश्त मिलेगा? मेरा मतलब है थोड़ा सालन होगा? डीजे नदीदी आंखों से पूछ रहा था। बिलाल मुस्कुराया और जवाब दिया। जुमा को असर के बाद आ जाना, बुध, जुमरात और जुमा। डीजे ने उंगलियों के पोरों पर हिसाब लगाया और चला गया। नौशी अपने टेरेस से बिलाल के कमरे को देख रही थी। उसने डीजे को कमरे से निकलते हुए देख लिया था। अपने हाथों में मौजूद आईफोन 5 से डीजे को फोन मिला दिया। मेरे कमरे में आओ। डीजे नौशी के सामने पेश हो गया। क्या पूछ रहा था? नौशी ने तीखे लहजे में तफ्तीशी निगाहों से पूछा। कौन जी? डीजे बन आंखों से सवाल कर रहा था, जैसे बच्चा नींद से जागा हो। जहां से आए हो अभी अभी? बिलाल साहिब, वो जी कह रहे थे प्याज गोश्त जुमे वाले दिन असर के बाद आकर ले जाना, बस और कुछ नहीं कहा उसने? हैरत से पूछा नौशी ने। कहते कहाँ हैं वो कुछ? वो तो सुनते रहते हैं बस। डीजे गुनुदगी के आलम में बोल रहा था। तोशी उनकी गुफ्तगू के दौरान बाथरूम से निकल आई थी। अब उसका मूड ठीक था, बल्कि अब वो नौशी की बेकरारी एंजॉय कर रही थी। प्याज गोश्त, प्याज गोश्त। नौशी खुद से मुखातिब थी। क्यों इतनी हाइपर हो रही हो? तोशी उसकी तरफ देखकर बोली। फिर डीजे को कहा, डीजे तुम जाकर आराम करो। डीजे थके हुए जिस्म के साथ वहां से चला गया। मगर वो आया क्यों नहीं? नौशी अभी तक वही पहाड़ा पड़ रही थी। तुमसे उसने कौन सा प्रॉमिस किया था? वैसे ये सारे सिम्टम मोहब्बत ही जाहिर कर रहे हैं। और ये प्याज गोश्त की क्या कहानी है? नौशी अपनी धुन में मगन थी। तोशी अब तक नौशी को ड्रेसिंग टेबल के मिरर में से देख रही थी। उठी और उसे दोनों बाजुओं से पकड़कर हिलाया। डफर, ये मिसबिहेव छोड़ो। मुझे पता है तुम्हारी फीलिंग्स हर्ट हुई हैं। जाओ मेरा बच्चा, फ्रेश हो जाओ। मैं पिज्जा ऑर्डर करती हूँ। जाओ शाबाश। नौशी वॉशरूम में चली गई और तोशी ने फोन पर पिज्जा ऑर्डर कर दिया था। आधा घंटा बाद वो दोनों बहनें पिज्जा खा रही थीं। वैसे ये प्याज गोश्त क्या चीज है? नौशी की सुई वहां ही फंसी हुई थी। ओह ओह उफ, ये प्याज गोश्त पिछले 2 घंटे से मेरे कान पक गए हैं सुन सुनकर। ये एक अफगानी डिश है। मगर वो, नौशी फिर तजस्सुस से बोली, मगर वो कैसे? डीजे कह रहा था पकाता है। तुम डार्लिंग पहले ये फिनिश करो, मैं सब कुछ बताती हूँ तफसील से। तोशी पिज्जे का टुकड़ा मुंह में डालते हुए बोली। दोनों बहनें खाने से फारिग हो चुकी थीं। बताओ, अब बताओ। नौशी बोल पड़ी फिर से। ये जो बिलाल साहिब आपके मंगेतर हैं, ये भी अलग सैंपल हैं। जब ये खुद पढ़ते थे तो सारा पाकिस्तान घूम चुके थे। अब ये 4 साल से स्कूल चला रहे हैं तो सारा मिडिल ईस्ट देख लिया है। और सार्क के सारे मुमालिक भी खाना खाने के शौकीन हैं और बनाने के भी। जुमा वाले दिन प्याज गोश्त पकाते हैं, सबको खिलाते हैं और मगरिब से पहले किसी के लिए लेकर जाते हैं। कहाँ जाते हैं किसी को पता नहीं। पिछले 3 साल से रमजान में उम्रा के लिए जाते हैं। 10 दिन उम्रे के लिए और बाकी 15 दिन दूसरे मिडिल ईस्ट के मुमालिक घूमते हैं। मिस्र, ओमान, अमारात, कुवैत, बहरीन और तुर्की भी जनाब देख चुके हैं। और आपसे यानी मेरी बहन से बहुत मोहब्बत करते हैं। तुम्हारी हर पसंद और नापसंद का पता है। बचपन से आज तक बेशुमार लड़कियां मरती हैं बिलाल साहिब पर, मगर वो मिस्टर तुम पर फिदा है। चलो चलें। नौशी ने हाथ पकड़ा तोशी का, उसके कमरे में। पागल हो, टाइम तो देखो। तोशी ने हाथ छुड़ाया और वॉल क्लॉक की तरफ इशारा किया। 12 ही तो बजे हैं। नौशी ने मासूमियत से जवाब दिया। तुम्हारे वैसे भी 12 बज गए हैं। तोशी स्टाइल से बोली। नौशी जी, वो साहिब सर्दी गर्मी 10 बजे सो जाते हैं। आज तो हमारी वजह से जाग रहे थे। मिस्टर बिलाल को सुबह तहज्जुद के लिए उठना होता है, फिर घंटा कुरान पाक पढ़ते हैं। इसके बाद नमाज से फारिग होकर जॉगिंग के लिए, फिर पौधों को पानी, परिंदों को दाना। इसके बाद गर्म पानी से नहाता है, फिर नाश्ता। जाने से पहले दादों के पास बैठकर हाल पूछकर स्कूल जाता है। तुम बड़ी खबर रखती हो उसकी। नौशी अबरू चढ़ाकर बोली। मेरे पास तो उसकी सिर्फ खबर है, उसके पास तुम्हारा सारा हिसाब किताब मौजूद है।
कहता है मोहब्बत करने वाले महबूब की सांसों का हिसाब भी रखते हैं। नौशी जी, मुझे आ रही है नींद, मैं सोने लगी हूँ। तोशी ने कंबल ऊपर लिया और बेड पर ढेर हो गई। आज तोशी नींद की आगोश में थी और नौशी बेकरार, और उसके कानों में तोशी के अल्फाज गूंज रहे थे। मोहब्बत करने वाले महबूब की सांसों का भी हिसाब रखते हैं। तोशी की दूसरी सदा गूंजी, उसे तुम्हारी हर पसंद और नापसंद का पता है, वो तुम पर फिदा है, फिदा 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 है। 12 बजे से सुबह 4 बजे का सफर तोशी के 4 जुमलों में खत्म हो गया। मोबाइल पर टाइम देखा, 4 बजे हुए थे। वो टेरेस पर गई। बिलाल के कमरे की लाइट ऑन थी। बिलाल जाए नमाज को समेट कर दीवान के बाजू पर रखता है, सफेद शलवार कमीज में मलबूस और गर्म सियाह चादर ओढ़े हुए। उसने कुरान पाक के शेल्फ पर रखे 14 नुस्खों में से एक उठाया और आवाज बुलंद तिलावत करने लगा। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाएं खान साहिब, दरवाजा खुला है। बिलाल ने बगैर देखे सदा लगा दी। उसकी नजरें कुरान पाक पर थीं। दरवाजा खुलता है, किसी के करीब आने की आवाज बढ़ जाती है। वो नजरें उठाकर देखता है, सामने ट्राउजर और शर्ट में मलबूस नौशी खड़ी थी। उसकी आवारा लटे उसके रुखसारों को चूम रही थी और उसकी आंखें सुर्ख थीं, मगर वो जबान से खामोश थी। जो बुत बनी बिलाल के सामने खड़ी थी। बिलाल ने उसे देखा तो सबसे पहले कुरान पाक को अकीदत और एहतराम से शेल्फ पर रखा। इसके बाद अपनी गर्म चादर उतार कर नौशी के ऊपर डाल दी, मगर उसके जिस्म को छुए बगैर। काली गर्म चादर में लिपटी हुई नौशी ऐसे लग रही थी जैसे हीरा कोयले की कान में चमक रहा हो। आप बैठ जाओ, बिलाल ने दीवान की तरफ इशारा किया और खुद किचन में चला गया। थोड़ी देर बाद साइड टेबल पर कॉफी के 2 मग और बिस्किट मौजूद थे। बिलाल ने गैस हीटर पहले ही लगा दिया था। कॉफी पियो। बिलाल ने मग नौशी के हाथों में थमाते हुए कहा। कॉफी बिल्कुल वैसी थी जो नौशी को पसंद थी, चीनी ज्यादा, दूध ज्यादा और कॉफी कम। मगर दूसरा मग मुख्तलिफ था, दूध कम और बगैर चीनी के। नौशी ने कॉफी का सिप लिया, वही जायका जो उसको पसंद था। उसके कानों में आवाज आई, उसे तुम्हारी पसंद और नापसंद का मालूम है। बिलाल ने बिस्किट उसके आगे किए। नौशी ने बगैर देखे बिस्किट मुंह में डाला। उसकी जबान ने टेस्ट उसके दिमाग को मैसेज किया, ये तो वही है जो मुझे पसंद है। उसने दाएं हाथ में बिस्किट के आधे पीस को देखा, बिल्कुल वही था। नौशी ने इस दौरान पहली बार बिलाल को आंखें उठाकर देखा, बहुत गौर से, दूर, आंखों में, अंदर, बहुत अंदर तक। तुम आई क्यों नहीं? उसने नैनो की जबान से पूछा। आज जिंदगी में पहली बार नौशी ने नैनो से जबान का काम लिया, मगर बिलाल इस जबान में डिग्री होल्डर था। तुमने बुलाया ही नहीं। बिलाल ने आंखों से जवाब दिया। तुम्हें कैसे पता मुझे ये बिस्किट और कॉफी पसंद है? बस पता है, मेरे पास तो ये बिस्किट हमेशा मौजूद होते हैं। एक्सपायर डेट होने से पहले पुराने वाले खा लेता हूँ और नए ले आता हूँ। तुम्हें इतना यकीन था मेरे आने का? नौशी के नैनो ने पूछा। हाँ बिल्कुल, बिलाल की आंखों ने जवाब दिया। और क्या जानते हो मेरे बारे में? तुमसे ज्यादा, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा। फजर की अजान की सदा गूंजी। दोनों तरफ के नैनो ने खामोशी इख्तियार कर ली। बिलाल की कॉफी टेबल पर पड़ी पड़ी ठंडी हो चुकी थी और नौशी का मग उसके हाथों में ठंडा हो चुका था। उसने ठंडी कॉफी का सिप लगाया और बिस्किट का आधा पीस मुंह में डाला और वहां से चली गई। बिलाल का मामूल था कि वो सर्दियों में 4 बजे सुबह उठता, वुजू करता, इसके बाद जाए नमाज पर तहज्जुद के लिए खड़ा हो जाता। तहज्जुद के बाद फजर की नमाज तक कुरान मजीद पढ़ता। फजर की नमाज के बाद वो जॉगिंग के लिए चला जाता।